To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight, all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the two young, beloved children, and his entire family, who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment. Good morning, ladies and gentlemen. We got him. On the evening of September 11th, a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. This information was relayed to the Utah County Sheriff's Office and scene investigators at Utah Valley University. This information was also conveyed to the FBI. Investigators reviewed additional video footage from UVU surveillance and identified Robinson arriving on UVU campus in a gray Dodge Challenger at approximately 8:29 a.m. on September 10th, in which he is observed on video in a plain maroon t-shirt, light-colored shorts, a black hat with a white logo, and light-colored shoes. When encountered in person by investigators in Washington County on September 12th, in the early morning hours, Robinson was observed in consistent clothing with those surveillance images. Investigators interviewed a family member of Robinson who stated that Robinson had become more political in recent years. The family member referenced a recent incident in which Robinson came to dinner prior to September 10th, and in the conversation with another family member, Robinson mentioned Charlie Kirk was coming to UVU. They talked about why they didn't like him and the viewpoints that he had. The family member also stated Kirk was full of hate and spreading hate. The family member also confirmed Robinson had a gray Dodge Challenger. Investigators identified an individual as the roommate of Robinson. Investigators interviewed that roommate, who stated that his roommate, referring to Robinson, made a joke on Discord. Investigators asked if he would show them the messages on Discord. He opened it and showed several messages to investigators and allowed investigators to take photos of the screen as each message was shown by Robinson's roommate. These photos consisted of various messages, including content of messages between the phone contact name Tyler with an emoji icon and Robinson's roommate's device. The content of these messages included messages affiliated with the contact Tyler, stating a need to retrieve a rifle from a drop point, leaving the rifle in a bush, messages related to visually watching the area where a rifle was left, and a message referring to having left the rifle wrapped in a towel. The messages also refer to engraving bullets and a mention of a scope and the rifle being unique. Messages from the contact Tyler also mentioned that he had changed outfits. I know there's been speculation as well as to the writing on those casings. चार्ली क्रिक की ऊटा में स्नाइपर अटैक में हत्या, शूटर्स की तलाश जारी। ओरेम ऊटा की अथॉरिटीज के बड़े मैनहंट को तेज कर रही है। एक स्नाइपर के लिए जिसने कंजर्वेशन एक्टिविस्ट चार्ली क्रिक, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के करीबी थे, को दिन दहाड़े गोली मारकर मार दिया। ये घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्रिक 30 को वेडनेसडे दोपहर ऊटा वैली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एड्रेस करते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऑफिशियल्स ने थर्सडे को बताया कि शूटर्स, जो कॉलेज उम्र का लग रहा था, ने एक रूफटॉप पर पोजीशन ली
कैंपस कोर्टयार्ड पर नजर रखी, एक गोली चलाई और फिर एक पास के नेबरहुड में भाग गया। ऊटा डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस सेफ्टी कमिश्नर बाउ मेसन के मुताबिक गुनहगार ने स्टूडेंट के बीच घुल मिलकर अपनी पहचान छिपाई और अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। शूटर्स का फरार होना और सबूत मिले। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कंफर्म किया कि उन्हें एक माउजर 30 कैलिबर बोल्ट एक्शन राइफल मिली जो एक टावल में लपेटी गई थी और कैंपस के पास एक जंगल जैसी जगह में छोड़ी गई थी। इन्वेस्टिगेटर्स को लगता है कि ये हथियार यूज हुआ था। राइफल में एक स्पेंट कार्ट्रिज मिला और मैगजीन में अभी 3 गोलियां लगी थी। कैंपस की सर्विलियंस फुटेज ने इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ क्रिटिकल्स लीड दिए हैं जो सस्पेक्ट के चलने फिरने को दिखाती है अटैक से कुछ घंटे पहले, लेकिन शूटर्स की आइडेंटिटी और मोटिव अभी भी क्लियर नहीं है। वेडनेसडे को 2 लोग और शॉर्ट टाइम के लिए डिटेन किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि वो केस से रिलेटेड नहीं थे। FBI ने 2 तस्वीरें रिलीज की है, एक शख्स की जो ब्लैक लॉन्ग स्लीव शर्ट, कैप और सनग्लासेस पहने हुआ था और उसे शूटिंग से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। FBI ने $1 लाख का इनाम भी अनाउंस किया है जो किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए दिया जाएगा जो शूटर्स की शिनाख्त और गिरफ्तारी में मदद करे। राइफल और एम्यूनेशन की फॉरेंसिक एनालिसिस एक फेडरल लेबोरेटरी में चल रही है जिससे फिंगरप्रिंट्स, DNA या और सबूत मिल सके। अटैक्स और देश का सदमा। क्रिक जो यूथ ओरिएंटेड कन्वर्सेशन ऑर्गेनाइजेशन टर्निंग पॉइंट USA के फाउंडर थे, एक आउटलुक डिबेट इवेंट में बोल रहे थे जो सोरेनसन सेंट्रल कोर्टयार्ड में हुआ था। इवेंट का फोकस पॉलिटिकल और कल्चरल इश्यूज पर था। फैटल शॉट के कुछ पल पहले क्रिक एक हीटेड एक्सचेंज में थे एक स्टूडेंट के साथ गन वॉयलेंस के इश्यूज पर। एक ऑडियंस मेंबर ने पूछा, डू यू नो हाउ मेनी ट्रांसजेंडर्स अमेरिकन्स हैव बीन मास शूटर्स ओवर द लास्ट 10 years? क्रिक ने जवाब दिया, टू मैनी। क्वेश्चनर ने फिर पूछा कि ओवरऑल टोटल मेंबर ऑफ मास शूटर्स कितना है। क्रिक माइक्रोफोन पकड़े हुए बोले, काउंटिंग और नॉट काउंटिंग गैंग वायलेंस। उसी वक्त एक गोली की आवाज आई। सोशल मीडिया पर घूम रहे वीडियोस में दिख रहा है कि क्रिक अपनी गर्दन पकड़ रहे हैं और खून बह रहा है। ऑडियंस में अफरा तफरी मच गई, लोग चिल्लाए और जान बचाने के लिए भाग गए। पॉलिटिकल रिएक्शंस और जस्टिस की डिमांड। इस किलिंग ने पूरा अमेरिका में बिपार्शियन कॉन्डमनेशन को जन्म दिया। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने पॉलिटिकल वायलेंस के खतरे की तरफ वार्निंग दी। उता गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने वादा किया कि गनमैन को पकड़ा जाएगा और उसे जस्टिस मिलेगा, एक ऐसे स्टेट में जहां डेथ पेनल्टी अभी भी एग्जिस्ट करती है। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने विजिबली शेकन होते हुए अनाउंस किया कि क्रिक को पोस्टुमसली प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया जाएगा, जो देश का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। उसी वक्त वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस और उनकी वाइफ उषा वेंस सॉल्ट लेक सिटी गए क्रिक के परिवार को सांत्वना देने। बढ़ते हुए वॉयलेंस की कड़वी याद। चार्ली क्रिक की हत्या के दौरान देश में पॉलिटिकली मोटिवेटेड वॉयलेंस के उठाने पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। एनालिसिस कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में इस तरह के अटैक्स में बढ़ोतरी हुई है जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के हर तरफ से आ रही है। इससे देश में और ज्यादा पोलराइजेशन और इंस्टेबिलिटी के खौफ बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़े सवाल बचे हैं। गोली चलाने वाला कौन था? क्रिक को टारगेट क्यों किया गया? और एक ऐसे देश में जो पहले ही डीपली डिवाइडेड है, ऐसे वॉयलेंट ट्रेजिडीज को कैसे रोका जा सकता है? थर्सडे रात को तक शूटर अभी भी फरार है और फेडरल, स्टेट और लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आसपास के एरियाज में सर्च कर रही है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और अथॉरिटीज ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन हो तो तुरंत सामने आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़फिल बाय आशिका। कीप सपोर्टिंग अस।